a dynamic, well-experienced and well-distinguished personality who has been working for more than 30 years in different states like Odisha, West Bengal, Sikkim and Chhattisgarh. He is planning everything meticulously for the betterment of the children. So, this discourse will be very helpful for all of us. Now, I request all the parents to mute the mic and switch off the video to listen attentively to our Honorable Principal, sir. Sir, please, it's over to you. Thank you. Thank you, madam. It's good afternoon. Good afternoon, sir. Esteemed parents of very prestigious beginning board class 9. Perhaps I am addressing the parents of class 9. It's good afternoon. सबको मेरा सादर नमन और बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद. Dear parents, this is R. Jagdish Kumar Reddy. Recently joined as the class teacher, my colleague already introduced. But truly speaking, I am not that big shot, as I have been nurtured by my teachers. I simply believe that yes, I am a teacher first. Then I have shouldered the responsibility of head. And since last 31, 32 years, I have put my best for the betterment of imparting education to the children. Yes, I have served different states as a part of my job. I have traveled different states. I have headed different schools. And recently I got my transfer from Chhattisgarh. Earlier I was posted in Raipur. And in 2015, I got my transfer from West Bengal after serving long 11 years. And even in Sikkim, I stayed for 7 years. And from 2017, I got my transfer to Sarguja, the border district of Chhattisgarh with Jharkhand. I never thought to come down to Jharkhand, but I am happy, I am fortunate. I believe that everything is preordained. It is the direction of supreme power. So I have come down. I joined the school on 25th April. My predecessor, Mr. Yadav, has served a long decade and more years here. Whatever support, so far as infrastructure is concerned, as academics is concerned, he has done his best. I have nothing to do, but simply I am to go with the scholarly aptitude, because you all are esteemed, are very important. You have trusted us. You have put your child in DAV. DAV is a benchmark now. As you know, आप लोग सबको पता होगा कि हम DAV वाले बहुत पुराने, काफी पुराने. It way back to 1886 we have started our humble journey. It was our beginning. Our first child, if I remember, the great soul, the great martyr, you can say, Syed Bhagat Singh. And if you consider the today, present scenario, today, the first citizen of India, Mahamahim, His Excellency Ramnath Kovind is a pass out of DAV College Kanpur, वो भी हमारा छात्र रहे. तो ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है. Yes, we are DAVian. हम लोग DAVian हैं. हाँ, मैं आप लोग को साधुवाद दूंगा, मेरा आभार प्रकट करूंगा कि आप DAV के ऊपर, हमारे ऊपर विश्वास रखें. आपने बच्चे को DAV में पढ़ाएं और उसका विकास के लिए, उन्नति के लिए आप प्रयासरत रहे. आप क्लास 8 इंटरनल बोर्ड था, बच्चा का मन में बोर्ड के ऊपर जो डर था वो जा चुका है. आप सबको मालूम है इस बीच में
हम लोग बहुत कष्ट उठाए हैं कोविड-19 के चलते हुए। इसमें हमको बहुत कुछ सीखने मिला। कोविड-19 बहुत कुछ सिखा दिया। सिखाने के चक्कर में कुछ बच्चे बिगड़ भी गए। हम भी बहुत कष्ट उठाए, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। फिर भी हम सफल रहे। आज अगर विश्व को देखा जाए, विश्व दरबार में भारत सर्वश्रेष्ठ है कोविड को अच्छे तरह मुकाबला करने के लिए। सो वी हैव कम विथ फ्लाइंग कलर्स, विथ कॉन्फिडेंस, बिकॉज वी बिलीव इन ट्रुथ, वी बिलीव इन एक्शन। मैं क्या करूंगा जॉइनिंग के बाद ये स्कूल के लिए, आपके बच्चों के लिए, दैट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विथ यू। आज मैं आभार प्रकट कर रहा हूं आप सबको, इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी अपना लंच आवर सैक्रिफाइस करके, अपना ऑफिस आवर सैक्रिफाइस करके आप मेरे से जुड़े, मेरे से रूबरू होने के लिए, मेरे से थोड़ा बात सुनने के लिए। मैं आपके बच्चों के लिए क्या मानसिकता मेरा है, क्या प्लानिंग है, क्या रोड मैप है, क्या विजन है, सब कुछ बताने के लिए। इसके साथ में एक चीज वादा करता हूं आपको, आई एम ए पर्सन who believes in action. I always insist my child to receive the takeaway from the classroom and transform it into action. Whatever I am teaching as a teacher of biology, I am a student of biology, I am learning. Earlier I was a lecturer who served the state college for last 14 years, and because for giving English education to my own child, I'm having one son who is now a doctor. So for giving in English education, I stepped down. I have demoted myself. I have come down from college scenario to join the schooling. DAV स्टार्ट जब हुआ था, पहला बच्चा जो शहीद भगत सिंह हम बात कर रहे थे, लाहौर में स्कूल था, उसका स्कूल का पहला प्राचार्य महात्मा हंसराज जी, जो संपूर्ण त्याग किए थे टोटली। महात्मा क्यों? वो डीएवी से 1 पैसा तनख्वाह नहीं लिए थे, अपने बड़े भाई का दिया हुआ 25 रुपया से उनका गुजारा हो रहा है। सो सेंट ये जो स्कूल विद्यालय, ये महान आत्मा परमार साहब का दिया हुआ जमीन और मकान से ये जो विद्यालय आप देख रहे हैं, उनको जो साकार रूप दिए हैं वो भी एक महात्मा थे, महात्मा नारायण दास ग्रोवर। उनका चयनित प्रार्थी मैं भी हूँ। बहुत साल पहले मेरे को चयन किए, डीएवी में ज्वाइन करने से पहले जो इंटरव्यू चल रहा था उड़ीसा में, मेरे को भेजा गया आईआईटी कैंपस खड़गपुर में। मैं प्रिफर किया, मैं और मेरा वाइफ धर्मपत्नी दोनों वो इकोनॉमिक्स के टीचर रहे, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ। तो हम लोग अपनाए पढ़ाने बच्चों को कैसे, क्योंकि हम कॉलेज बैकग्राउंड से आए थे स्कूल में, तो आई एंजॉयड माई लाइफ विद द स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज द स्टेज वेयर वी कैन मोल्ड द माइंड ऑफ द चाइल्ड। यहाँ मैं जो बात रख रहा हूँ आज आपके सामने में, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। 10-20 मिनट में बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आपको। अगर गौर करें, मैं वादा करता हूं आपका बच्चा, मैं बिलीव नहीं करता हूं ये +2 डिग्री एक छोटा सा कागज 95%, 98%, आई डोंट बिलीव इन दैट। आप जानते हैं मेरा शिक्षा कब संपूर्ण पूर्णता प्राप्त कब होता है? जब मेरा बच्चा एक बेहतरीन इंसान बन जाता है, then only my teachership is getting accomplished. I believe in making the child a good citizen. एक अच्छा इंसान बनाना मेरा मूल उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद एक बार बोले थे ना, द एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर। यहाँ चरित्र निर्माण करने के लिए स्कूल बना है। आपका बच्चा नर्सरी से ले अभी तक आ गया। अभी आप हमारे ऊपर, डीएवी के ऊपर विश्वास करके दाखिला दिए हैं। अगर मैं आपका बच्चा, मेरा एक बच्चा नहीं है, यहाँ जो 2500-2700 बच्चे सब मेरे हैं। आई बिलीव दैट योर चाइल्ड इज माइन।
एंड दिस स्कूल बिलोंग्स टू यू। आपका ही है विद्यालय, इसका मां आन बान शान सब आपका है। जिस दिन ये बात आपका समझ में आएगा, आपका साझेदारी मेरा साझेदारी मिलकर हम काम करेंगे, देन वी आर गोइंग टू कंकर द वर्ल्ड। मैं दावे के साथ बोलता हूं, आपका बच्चा बेहतरीन इंसान क्या, जग में नाम रोशन करेगा, ये विद्यालय नाम रोशन करेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। मेरा भी मन होता है, बच्चा स्पेशल होता है। योर चाइल्ड इज स्पेशल, ईच चाइल्ड इज स्पेशल। सबका हुनर होता है। आपको कभी लगता है कि भारत में केवल एक सचिन तेंदुलकर है, भारत में केवल एक शाहरुख खान है, एक सुशांत राजपूत है, एक महेंद्र सिंह धोनी है? ये गलत बात है। ये क्या एक कोकिला लता मंगेशकर की एक एम.एफ. हुसैन है चित्रकार? नो, एच चाइल्ड। आपको पालक के नाते बच्चे का हुनर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हम लोग केवल कमाते कमाते, मम्मी लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए बोलते हैं माँ ही तो पहला शिक्षक है, और हम लोग स्कूल में सेकेंड मदर होते हैं, द्वितीय माँ। पापा लोगों के बारे में तो मैं बोलूंगा नहीं, पापा लोग बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि वो सब एटीएम है, पैसा कमाना, घर चलाना उनका काम है। करते करते हुए दे वर्क लाइक रोस्टर, पूरा एकदम रोलर कोस्टर जैसा काम करते हैं, खून पसीना एक करके परिवार चलाना, निर्माण करने के लिए गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा सारे पापा लोगों को, जीवन का व्यस्त बहुल समय के भीतर आधा घंटा चाहिए बच्चों के लिए। वो क्या करेगा, उसका परिणाम, ऑफिस का काम खत्म, आए नहा धो के फ्रेश हुए, चाय पिए, बच्चों के साथ आधा घंटा काटिए सर। आपका आधा घंटा दिया हुआ बच्चे को उसका चरित्र निर्माण करने के लिए, उसका भविष्य निर्माण करने के लिए इतना सहायक होगा। हम तो आज आए कल चले जाएंगे सर, लेकिन आप हमको कहीं दिल में कहीं कोने में याद कीजिएगा। एक प्राचार्य ऐसा बोला था, और उसका बात सुन के मैं गौर किया और मेरा बच्चा आज दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। तब जाके मेरा ये मीटिंग का सार्थकता आ जाएगा। आई विल बी गेटिंग अकम्प्लिश्ड, मेरे को मेरा गुरु दक्षिणा मिल जाएगा। आपसे कोई उम्मीद नहीं है, बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है, केवल एक ही उम्मीद है, इफ आई एम वर्किंग फॉर यू, माई चाइल्ड शुड वर्क फॉर मी। दिस win-win relationship will create a good ambience and my child will excel. मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं, आपका बच्चे का सपना क्या है, आपका सपना क्या है? 99 पालक निश्चित रूप में बोलेंगे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, लॉयर बनेगा, जस्टिस बनेगा, इस तरह बहुत सारा। लेकिन आप में से कोई कभी सोचा है, कोई बच्चा सोचा, कभी कभार आता है उत्तर, मैं शिक्षक बनूंगा। आपका कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को बनाता कौन? हमारा जैसा शिक्षक ही बनाते हैं। तो आप जब मांग करते हैं विद्यालय में अच्छा टीचर नहीं है, अच्छे नहीं है, हम कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे? अगर हम नहीं बनेंगे, नहीं बनाएंगे, कहां से लाएंगे? ये समस्या मेरा है। मैं ये सब बात रखने के लिए आज ये मीटिंग कन्वीन नहीं किया हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो परिवर्तन हुआ, ये आपको भी मालूम है। राइट टू एजुकेशन 2010-11 का जो नियम है, आपको भी मालूम है। उसमें क्लास 8 तक कोई पास फेल नहीं है, सीधा जाएगा। 9, 10, 11 में बोर्ड है। 9 इंटरनल स्कूल मीन स्कूल बेस्ड बोर्ड एग्जामिनेशन, 10 बोर्ड बेस्ड बोर्ड एग्जामिनेशन, 11 स्कूल बेस्ड बोर्ड एग्जामिनेशन एंड 12 बोर्ड बेस्ड बोर्ड एग्जामिनेशन, ये था। लेकिन अभी जो एनईपी 2020 में केवल एक ही बच्चा नर्सरी से एडमिशन करेगा, 12 तक कोई भी एग्जाम, कोई पाबंदी नहीं, अपना मन से करेगा, और वहां लास्ट में एक ही बोर्ड होगा। तो आपका बच्चा उसी दायरे में आ जाता है। देयर आर सर्टेन रिफॉर्म्स योर पेरेंट्स with the advent of NEP 2020, assessment has come a long way. And that is from assessment of learning to assessment of, that means assessment for learning and assessment as learning.
So we are now experiencing a paradigm shift from content-based assessment to competency-based assessment. This is what we are going to experience, the experiential learning. What we experience, we learn. So अब मैं अभी बात किया ना, मैं पहला दिन जब आपका विद्यालय ज्वाइन किया था PVSS देवी कोडरमा, तो मैं बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में मिला था. गुड मॉर्निंग हो गया, सब हो गया. मैं बच्चों से पूछा, बच्चे आप अभी क्या कर रहे थे? बच्चे बोले सर हम असेंबली कर रहे थे. असेंबली में क्या हो रहा था? सर हम प्रे कर रहे थे. किसको प्रे कर रहे थे? सर भगवान को प्रे. आप भगवान को देखें, ईश्वर को देखें? सब लोग बोले नो, ये तो झूठ बोले हमको सुबह सुबह. आई टोल्ड देम, पितृदेव भव, मातृदेव भव, गुरुदेव भव, और भारत में अतिथि देव भव. चार ईश्वर तो इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, आप कैसे नहीं देख रहे हैं? तो हम देवी में सिखाते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून स्कूल में टीचर को बोलते हैं, तो सुबह उठने के बाद माता का चरण स्पर्श करना, पापा का चरण स्पर्श करना, गुरुजनों को चरण स्पर्श करना, विश करना, ये तो सीखो, ये तो करो. We start the day with भूर्भुवस्व, we end the day with सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांति पाठ के साथ. तो ये क्या पर्याप्त नहीं? We impart Vedic culture, we infuse Vedic culture through हवन. Each child is getting. पहले मैं उस दिन बच्चों के साथ, छोटे क्लास के बच्चों के साथ बैठ के हवन किया. क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा संस्कार सीखे. आनो भद्रा कृणव यन्तु विश्वतः, लेट ऑल गुड थॉट्स कम फ्रॉम एवरी कॉर्नर, इन्फ्यूज इन माय माइंड. मेरा बौद्धिकता, मेरा मानसिकता इतना शक्तिशाली हो जाए कि मैं लीडर बनूं और मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं. यही है हमारा आशीर्वाद है बच्चे को निर्माण करने के समय. ये रामकृष्ण परमहंस बोले थे, ये विवेकानंद जी बोले थे, ये स्वामी दयानंद जी बोले. तो ये तो सत्य है, आर्यन कॉन्सेप्ट है, आर्यन फिलोसॉफी है. तो यहाँ माँ का भूमिका ज्यादा अहम है, क्योंकि मदर इज द फर्स्ट टीचर. यहाँ विद्यालय के टीचर इज द सेकेंड मदर, एंड वी द फादर बिकम द पेरेंट, एक्ट एज सपोर्टिंग स्टाफ, एक्ट एज मेंटर, एक्ट एज मोटिवेटर, एक्ट एज फैसिलिटेटर. वो हम सरल कर देते हैं, उनका रास्ता को सुगम बना देते हैं, बहुत अच्छा बना देते हैं, उस जिसमें कोई भी कांटा ना रहे, हमारा बच्चे का पैर में कोई कांटा ना चुभे. इसीलिए हमारा अहम भूमिका होता है. मेरा निवेदन है सारे पालकों को, अपना जीवन का आधा घंटा 10-15 मिनट सही बच्चों के साथ ये क्या करेगा, आपका और आपके बीच का जो फासला है, बच्चे के बीच में जो फासला है, दैट विल ब्रिज द गैप. That will be bridge the gap, and the dividend you will get in future very soon. आगे में ना आप बहुत सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा. आपका बच्चा कभी भटकेगा नहीं. आज ऑनलाइन के टीचिंग कोविड के चलते हुए बहुत कुछ सिखा दिया. आप तो बैठ गए ऑनलाइन टीचिंग, सुबह सुबह क्लास लग गया. उस समय तो आपको झाड़ू पोछा करना है, किचन संभालना है, ऑफिस को जाने के वॉशरूम जाना है, रेडी होना है, टिफिन पैक करना है, इसको भी देखना है, पढ़ाई भी देखना है. तो उसमें आप बोल दिए ऑनलाइन करो भाई, मोबाइल लैपटॉप दे दिए, बस अच्छा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे दिए, टैबलेट दे दिए, सब दे दिए, बहुत कंफर्टेबली बच्चा बैठ गया. आप पास में दूध का ग्लास रख दिए, स्नैक्स रख दिए, खाते पीते पढ़ता रहा घर में, होगी वीडियो ऑफ है. हम भी कभी कभी जब बच्चों को बोलते थे भाई वीडियो थोड़ा ऑन करो बेटा, बच्चा पूरा मैंने लोअर निकर पहन के कहीं फील्ड में बैठ के सुन रहा है. दैट मीन्स ऑन करके रख दिया. आपके नजर के सामने में भी ऐसा बच्चा करता था, करता भी है अभी भी. क्या करता है, तुरंत व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम चला लेता है, फेसबुक देख लेता है, व्हाट्सएप कर देता है. सो ऑल दीज आर द बैड रिपरकशंस दैट लीड टू साइबर क्राइम, जिसके ऊपर मैं आऊंगा, अभी 2 मिनट बात करूंगा उसके ऊपर. तो ये सब चीज तो बैड रिपरकशंस. हम तो अगर थोड़ा जागरूक हो जाते उस समय, बेटा बैठो मैं भी पढ़ूंगा, आई एम टू लिसन, आई एम टू टेक द होमवर्क एंड आई विल एक्ट ऑन दैट एंड आई विल हेल्प यू ऑल्सो. अगर ऐसा करते ना, बच्चा कभी भटकेगा नहीं, बच्चा कभी बिगड़ेगा भी नहीं, तो डेयर भी नहीं करेगा. आपको पता है 2 दिन पहले, आई मीन डे बिफोर, कल शायद लास्ट एग्जाम था
क्लास 10 का। मेरा विद्यालय में मेरा बच्चा जाते हैं सैनिक स्कूल में, बाकी 3-4 स्कूल का बच्चे मेरे यहाँ आते हैं। कल क्या हुआ, जब एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ बच्चे, मैं विद्यालय का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा बच्चा उससे भी बदतर है, मेरे पास सारा खबर है, क्योंकि मैं समय नहीं मिला बस में ट्रैवल करने के लिए उनके साथ, अदरवाइज आई वुड हैव विजिटेड। आई नो हाउ टू टेम माय चाइल्ड। मेरे पास प्यार है, भरपूर प्यार है, मेरे पास छड़ी भी है, मैं शासन जानता हूं। इफ माय कलीग विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल, आई नो हाउ टू टेम देम, बिकॉज आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड फॉर माय चाइल्ड आई एम ए टीचर फर्स्ट। I am not the principal. I am a teacher because I teach biology in the class. पूछ लीजिए, I am taking the class of biology in higher classes. I will go to your class. Class 9 को भी साइंस पढ़ाएंगे हम, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूं जो बच्चा कल नीट करेगा, एनटीएससी करेगा, उसके लिए बायोलॉजी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। I can ask, I can so this question is very important for CBSE, this question is very important for NTSC, this is for IIT and this is for NEET. मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछा था बच्चों को, what is the chemical name of water, and my child has failed to answer. Can you believe it? Is this the standard of my child? And this school is I am heading. I felt very shame of myself because I have not cleared the fundamental of my child. केमिस्ट्री का फंडामेंटल में क्लियर नहीं कर पाया। I was shocked and I worked on that. I assure you, your child is not going to be deprived from quality education or good education. So long I will be continuing here. I assure you this thing. But at the same, you have to assure that yes, you will advise your child to come to school regularly. Absenteeism बंद कीजिए, outing बंद कीजिए, regularly भेजिए, क्योंकि I am updating my software. School software now going to be updated. बस में जाता है, बस में कौन सा स्टॉपेज रहता है, आपके पास मैसेज चला जाएगा। यू नीड नॉट टू आस्क, यू कैन ट्रैक। ये बस का स्पीड अगर 40 किलोमीटर से ज्यादा होता है, आई कैन स्विच अप द इंजन यूजिंग माई सेल फोन, मेरा मोबाइल यूज करके मैं कर, आई हैव कंट्रोल्ड। सर्वेलेंस सिस्टम को मैं बहुत तगड़ा कर दिया, पीटीजेड कैमरा लगा जो 360 डिग्री एंगल में घूमेगा, सबका ऊपर मैं नजर रखा हूं। मोरओवर आप लोग तो मेरा पीटीजेड कैमरा है। मेरा अगर 2000 बच्चे हैं तो 4000 पालक है, 5000 रिश्तेदार है। आप सोचिए तो कितना बढ़िया नेटवर्क है मेरा। इस शहर में बच्चा कोने कोने में जहां भी करेगा सारा सिस्टम। सो आई कैन मैनेज डिसिप्लिन, क्योंकि डीएवी का जो फास्ट लेटर है ना, डी इज द वॉचवर्ड ऑफ डिसिप्लिन। आई एम द वॉचडॉग फॉर डिसिप्लिन। वी ऑल द डीएवियंस, आई टेक प्राइड इन सेइंग सो। तो ये नहीं कि आप खाली सोच लिए और डीएवी सबसे बहुत कोडरमा में बहुत 1 नंबर स्कूल है आप दे दिए, ऐसा नहीं है। इट इज ए बेंचमार्क। डॉक्टर खुशवंत सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे हैं, इट इज द बिगेस्ट एनजीओ इन द वर्ल्ड। आई रिटरेट, इट इज द बिगेस्ट एनजीओ इन द वर्ल्ड so far private education sector is concerned. Private, we have 1 lakh employees, 4 million plus alumni. आप सोचिए 900 plus campus sprawling over India, 39 in abroad. सीबीएसई का मेजर लायन शेयर होल्डर हम लोग है। सीबीएसई रिजल्ट जब छपेगा 1 to 20 के अंदर कम से कम 12-15 बच्चे हमारा डीएवी का निकलेंगे। एंड टॉपर इज सीबीएसई का टॉपर हम ही रहे। मैं जिस स्कूल से आया था, माय चाइल्ड स्कोर 98.6। आप सोचिए केवल एक सब्जेक्ट में 1-2 मार्क कम हो गया, 4 सब्जेक्ट में 100 of 100। कैन यू इमेजिन? दैट स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड एनटीएससी स्कॉलर, दैट स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ आईआईटियंस और नीटियंस। तो हम लोग मेहनत करते हैं सर, इसीलिए कि आई वांटेड टू रिस्टोर इंग्लिश एजुकेशन, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल है, इसीलिए एम्बियंस आपको भी घर में क्रिएट करना पड़ेगा। आपका बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है ना, सपना है ना, लिखवा दीजिए स्टडी टेबल के सामने में मिस्टर और मास्टर XXX, और उससे पहले एक सफिक्स जोड़ दीजिए इंजीनियर XXX बैच, 5 साल 7 साल बैच, जो जिस बैच में बनेगा उस बैच को लिख दीजिए। जब भी देखेगा इंस्पायर्ड होगा तो खुद को इंजीनियर। क्रिएट दैट एनवायरनमेंट एट होम। भेजिए मेरा स्कूल को, मैं इंजीनियरिंग बना दूंगा। जिस साल +2 करेगा उस साल आईआईटी क्रैक करेगा, आई एश्योर यू, दबे के साथ। जब तक माइंडसेट नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा,
हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिर करेगा कौन? पापा करेंगे, मम्मी करेंगे, टीचर करेंगे ना? ये बोल अभी जो बोल बात कर रहा है प्रिंसिपल करेगा? कोई नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द डे चाइल्ड हैज टू डू, बच्चा ही खुद करेगा। सो बच्चे को जागरूक करना, बच्चे को मोटिवेट करना, बच्चे को नियंत्रित करना, सुपथ सुमार्ग पर लेना हमारा नैतिक दायित्व होता है। आप जानते हैं भारत में आतंकवादी कैसा बढ़ गए? इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल होल्ड, जो ऐश्वरिक शक्ति होता है ना। इसीलिए हम क्लास 8 तक देखे होंगे नैतिक शिक्षा हम पढ़ाते हैं बच्चों को। मैं जब क्लास लेता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी का 5 मिनट में स्पिरिचुअलिज्म ऊपर बोलता हूँ। क्यों? ये शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है। उनका आशीर्वाद से तो हम जीते हैं, सांस चलता है। आज और ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, कैन आई सर्वाइव? वही तो ईश्वर है। आज अगर सूरज पूर्व से उठ के पश्चिम से नहीं ढलेगा, मैं जी पाऊंगा? वही तो ईश्वर है। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग गुड, हेल्पिंग अदर्स, वही तो ईश्वर है। आप अगर अच्छे बच्चे हो जाते हो माँ और पापा के लिए, वही तो ईश्वर है। यहां अगर बच्चा नहीं होता, यहाँ ये विद्यालय नहीं होता, यहाँ टीचर नहीं होते, आज ये प्रिंसिपल जो बात कर रहा है वो भी नहीं आता। सो फॉर मी, योर चाइल्ड एंड यू योरसेल्फ बोथ आर गॉड। आप तो मेरे ईश्वर है, तो आपको प्रथम प्राथमिकता मैं देता हूं। इसीलिए आपका कोई भी कंप्लेंट्स हो, कहीं जरूरत हो, मैं आने के बाद तुरंत मेरा मोबाइल नंबर शेयर किया हूं। आप गौर कीजिएगा, इतना गट्स होना चाहिए प्रिंसिपल को, क्योंकि कभी कभी इतना ना फोन आता है और प्रिंसिपल लोग डर जाते हैं। आई हैव शेयर्ड माय ईमेल आईडी आल्सो। मैं फोन नहीं उठाऊंगा। आप सोचिए, मैं तो दिखावा प्रिंसिपल दे दिया लेकिन उठाता नहीं। आई विल कॉल यू बैक, आई प्रॉमिस यू। इफ आई विल मिस द कॉल, माना नहीं कि तुरंत उठाऊंगा, फ्री रहूंगा तो उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा तो आई विल कॉल यू बैक, आई अश्योर, अनलेस देयर विल बी अ टावर प्रॉब्लम। अदरवाइज यू शेयर योर कंप्लेंट इन मेल। बहुत सारे पेरेंट्स, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले फीस पेमेंट के ऊपर मेरे को बहुत सारा मेल आया, मैं तुरंत किया और व्हाट्सएप में भी रिप्लाई किया। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर आल्सो, व्हाट नंबर यू हैव बीन गिवन। सो आप कर सकते हैं। अब अगर उसको अगर ठीक से उपयोग ना करे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मैं पसंद नहीं करूंगा तो ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह आप अगर थोड़ा जागरूक हो जाएंगे तो बच्चा तो सुधर जाएगा। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप गौर नहीं किए। आप सच्चाई से बोलिए तो आज 5 मिनट थोड़ा गौर, साइलेंटली काम एंड क्वाइट बताइए तो कितने पापा लोग हैं जो अपने बच्चे को 10 मिनट देते हैं डेली। 30 to 40% पेरेंट्स इवन डू नॉट हैव टाइम टू सी द फेस ऑफ द सन और डॉटर, इतना बिजी रहते हैं। सर आखिर क्यों? किसके लिए? किसके लिए हम जी रहे हैं? हमारा तो हो गया लाइफ। We are living for our offsprings, our generation next. So please be serious. Find out the positivity in your child and help the child, because I believe, again I tell, I believe that your child is mine and this school is Please, sir, please mute your mic, please, because there is a problem in sharing my views. So, examination or assessment process will be connected you very shortly. क्या प्रोसेस रहेगा मैं फिर एक बार आऊंगा। ये एक नोटिस, वर्बल नोटिस, आई विल शेयर इट थ्रू रिटन ऑल्सो। एवरी सेकेंड सैटरडे मंथ का नोट कर लीजिए। सर प्लीज म्यूट योर माइक। एवरी सेकेंड सैटरडे देयर विल बी पेरेंट टीचर मीटिंग, आपको अटेंड करना है। फिजिकली मैं रजिस्टर रखूंगा और आपका जो जो एडवाइस रहेगा रजिस्टर में, फीडबैक रजिस्टर में मैं गौर करूंगा। आपको मैसेज जाएगा स्कूल की तरफ से, पक्का जाएगा। और बच्चे का जो बिहेवियर, बच्चे को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देके मत भेजिएगा, मैं बाहर कर दूंगा गेट से। और बच्चा अगर लेट आएगा 5 मिनट 10 मिनट में बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं एक बच्चे को रिफ्यूज किया बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको आना था 9:45 में, नहीं आए, 10 बजे नहीं आए, 10:15 में क्वेश्चन दे दूंगा, 10:15 में। बच्चा आया था 9:20
5 में 9:25 में उनका प्रिंसिपल बात नहीं किया, उनका एस्कॉर्ट टीचर कुछ नहीं किया, बच्चे को तो 9:15 के बाद, क्योंकि देयर में भी ब्रीच इन सीक्रेसी, इसलिए मैं रिफ्यूज कर दिया था। तो विद्यालय का जितना नियम है ना, नॉर्म से आपको पालन करना पड़ेगा। और मैं अगर इफ आई एम द कस्टोडियन टू फॉलो द नॉर्म्स, then it is my humble submission to all my esteemed parents to cooperate me to aware your child to follow the norms of DAV. तो ये क्या होगा, बच्चा केवल डिसिप्लिन नहीं होगा, बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा, अच्छाई से, अच्छे मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। एक साइबर क्राइम से बचना है, उसको जागरूक करके रहिए। आजकल बहुत गर्मी जब पड़ रहा है, गर्मी के ऊपर मैं दो लाइन बोल देता हूँ। एक तो जो मेरा सीबीएसई सर्कुलर सा है, हमारा स्कूल टाइमिंग हम चेंज कर दिए थे। अगर गर्मी ह्यूमिडिटी के चलते हुए जून जुलाई में कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू विद दैट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मैं थोड़ा दुरुस्त करूंगा। प्रचुर वाटर पानी देके भेजिएगा। फूड एंड अच्छा न्यूट्रिशन, बिना एम्प्टी स्टमक आते हैं, असेंबली में गिर जाते हैं बच्चे, ऐसा मत कीजिए। कुछ ना कुछ जबरदस्ती खिला के, कम से कम दूध का 1 गिलास दूध पिला के भेजिएगा। उनका ड्रेस कोड भी मैं थोड़ा चेंज करूंगा गर्मी के चलते हुए। आई विल टॉक टू यू, आई विल कम अप विद गेवी गाइडलाइंस यूनिफॉर्म के लिए। वी हैव फास्टेड फैसिलिटीज, ORS सचेट्स भी हमारे पास है, गर्ल स्टूडेंट्स को लिए भी है रिक्विजिट जितना। और बच्चे को मना कीजिए, बाहर बार बार जाना मना कीजिए, और स्पेशली धूप में जाना मना कीजिए, और स्ट्रेनस एक्टिविटी को, हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क करने के लिए मना कीजिए, बाहर खाली नंगा पैर जाने के लिए मना कीजिए, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जंक फूड खाने के लिए मना कीजिए। हाथ का बना हुआ खाना दीजिए, जंक फूड बिल्कुल। ये सब चीज गर्मी से, हीट स्ट्रोक से बचाव करेगा आपके बच्चों के लिए। बाकी रहा साइबर सेफ्टी के लिए, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट रूल्स एंड regulations are there by Government of India, even state government have enacted. So you just identify the threats or vulnerability and assess risk exposures. करना है, क्या कर रहा है बच्चा, विजिलेंस होना, सर्विलेंस सिस्टम को वेरी स्ट्रांग रखना है, और डेवलप द प्रोटेक्शन एंड डिटेक्शन मेजर्स, जो एंटीवायरस जैसे देते हैं ना, उसको भी प्रोटेक्शन करके रखना। रेस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। कब अगर ऐसा हुआ, ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एजुकेट, उसको बताना, बच्चे को बिठा के बताना है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू व्हाइल लॉगिंग इन, और अपना सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करना, बहुत बढ़िया से प्रोटेक्ट करना। इसके बावजूद मेरा दरख्वास्त है, आप नोट कर सकते हैं, आई विल गिव थ्रू SMS ऑल्सो। सीबीएसई का एक जैसे स्कूल का वेबसाइट है, सीबीएसई का एक वेबसाइट, CBSE www.cbse.nic.in, इसको बिल्कुल देखिए, इसमें लिंक है, ये पोर्टल है। देखिए, आई एम इन पब्लिक पोर्टल, इसलिए मैं ट्रांसपेरेंसी में, आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। सो सीबीएसई भी एक पब्लिक सेक्टर, वी आर इन प्राइवेट सेक्टर, सीबीएसई इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सो इट हैज ऑल्सो its portal and it has different links, बहुत न्यू सर्कुलर्स, नोटिस, एग्जाम डेट शीट्स, प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस, बहुत सारा लिंक है। आप जाइए, देखिए, अपडेट कीजिए, बच्चों को भी अपडेट करवाइए। इसके बावजूद और एक वेबसाइट है www.ciet.nic.in, ciet.nic.in, इसमें भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ictcurriculum.gov.in, ictcurriculum.gov.in, और info cyber awareness, www.infocyber-awareness.com, और एक www.ncert.nic.in। ये सब वेबसाइट को आप लॉग इन कीजिए, यू विल गेट एम्पल इंफॉर्मेशन एंड
योर चाइल्ड विल बी बेनिफिटेड अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण सूचना देता हूँ, क्योंकि आपका बच्चा क्लास 9 बोर्ड क्लास में है। 9 में बोर्ड एग्जाम, अंत में 9 बोर्ड एग्जाम होगा। टर्म 1 टर्म 2 में होगा 2 पीरियोडिक टेस्ट, एक टर्म, 2 पीरियोडिक टेस्ट, एक टर्म, ये ऐसा होता है ना। पीटी और टर्म 1 टर्म 2 मिला के असेसमेंट होगा। क्या असेसमेंट होगा उसका डिटेल्स में आपको बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। कितना करिकुलम रहेगा वो भी हम शेयर करेंगे। उनका क्लास टीचर, उनका सब्जेक्ट टीचर, उनका एकेडमिक इंचार्ज है। तो मेरा ये निवेदन है, जब ये सब चीज आपको मालूम हो जाएगा, उसको बच्चा फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर थोड़ा आप बहुत गंभीरता से गौर करें और कंट्रोल, नियंत्रण रखें बच्चे के ऊपर। हमारा जो एग्जाम सिस्टम 2 भाग में जो होता है, टर्म 1 टर्म 2, एक तो ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, और उसके ऊपर सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। इसके साथ और एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि जब सिलेबस कटेल भी हो सकता है, कुछ कर मैंने अभी अपडेट हुआ है वेबसाइट में, हम लोग आपको शेयर कर लेंगे स्प्लिट ऑफ सिलेबस, कौन महीना में कौन कितना सिलेबस करना है। क्योंकि ये टर्म 1 का सिलेबस हार्डली टर्म 2 में चला जाता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम सब सारा चीज मानते हैं विद्यालय का, मेरा निवेदन है, हम्बल सबमिशन, आपके साथ मिलके मैं सारा डिसीजन लूंगा, सब जितना भी डिसीजन है सब लूंगा। सो फार स्कूल फीस आर कंसर्न, स्कूल ड्यूज कंसर्न, बहुत सारा पेरेंट्स का कंसर्न रहता है। मैं आप अपडेट कर दूंगा इसको। बहुत यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन है। इसमें स्टूडेंट आप है, पेरेंट्स आप है, टीचर आप है, प्रिंसिपल आप है, ट्रांसपोर्टर्स आप है, बहुत कुछ एप्लीकेशंस है। और इसमें बच्चा का डिटेल्स जो पर मंथ जितना एकेडमिक ग्रोथ होता है, मैथ्स में कितना हुआ, साइंस में कितना हुआ, इंग्लिश में, सब ग्राफिकली आपको दिखाई दिया। कौन सा महीना कितना आगे गया कि नीचे गिरा, everything you will able to know. Please pay the school fees timely to avoid the fine amount. फाइन लगेगा, क्योंकि बच्चा जब कोई भी, इवन हम भी कभी गलती करते तो हमको पनिशमेंट मिलता है। सो टू अवॉइड दिस फाइन, प्लीज पे द फीस रेगुलरली। ये मेरा हम्बल सबमिशन है, क्योंकि आपका कोऑपरेशन, योर कोऑपरेशन इज माय स्ट्रेंथ, एंड वी ऑलवेज, आपका बच्चा अगर गुड है, नेवर स्टॉप, हेल्प योर चाइल्ड टू बी बेटर। इफ योर चाइल्ड इज बेटर, नेवर स्टॉप, हेल्प योर चाइल्ड टू बी द बेस्ट। इफ योर चाइल्ड इज बेस्ट, नेवर स्टॉप, हेल्प योर चाइल्ड टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ऊपर देखिए, ऊपर में एक आसमान, लेकिन उड़ान इतना भरिए और विश्वास रखिए, ये आसमान के ऊपर और भी आसमान है। 7वां आसमान तक उड़ान भरने के लिए आपको बच्चे को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। यू हैव टू मोटिवेट। एज ए मेंटर, आई विल आल्सो हेल्प योर चाइल्ड टू ग्रो बेटर। सो आई बिलीव दैट आई हैव टॉक्ड लॉट ऑफ थिंग्स, बट humbly I inform you that my words should not sound, my words should be seen in my action. You will see me in action in upcoming days. I assure you that I will come up to your expectation. I will try my best for that, and I will stand by your child as and when required by the child, as well as you yourself. With all these, आपको अगर कुछ बोलना है, कुछ सजेशन देना है, आज तो समय नहीं है। You can use my mail ID or you can use my WhatsApp number. You can you log in after those. I'm sorry that limited parents have joined. इसमें YouTube चैनल में लिंक दिया गया है। बाकी जो नहीं सुन पाए, YouTube चैनल खोल के मेरे को सुन पाएंगे। ऐसा मैं हर बीच बीच में मैं आपके बीच में आऊंगा, जो जितना जानकारी दूंगा, दैट इज माय ड्यूटी। बट मैं तो कभी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, कि मजबूर नहीं कर पाऊंगा, कभी कंपल्सन नहीं कर पाऊंगा कोई भी चीज को।
जैसे कि अभी एक डीवी यूनाइटेड मैगजीन के ऊपर डीवी के ऊपर बताया, उसको सब्सक्राइब करें तो आप बहुत कुछ चीज जान जाएंगे, कितना क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं आपके बच्चों के लिए। आई लास्ट बट नॉट लीस्ट, as I said, I believe that your child is mine and the school is yours. So for that, we have to work hand in hand. We have to create win-win environment in the school, at home, in society also, and we have to help our child to grow best rather than better. With all these, for getting all the blessings, divine blessings, I submit myself to my Lord to bless all of us as, O Lord, grant us faith that from day to day we may walk with you in a blessed way. Thank you. Thank you very much. Sabko sadar pranam. Thank you very much.